So, good afternoon, friends, children. Today, this is my first lecture for class 12 physics, that is the chapter electrostatic fields and charges. Okay, so without wasting time, I am starting my lecture. If you will give a feedback by messages or sharing, if it will be good, more lectures will come later. Okay, I will put all the videos topic wise, chapter wise, and I will cover the syllabus of class 12th, class 10th, 11th, and whatever you want, please tell me in messages so that I will make videos. Clear? So today I am starting the class 12 physics, chapter 1. So basic first definition is, that is, what is the electric charge? You all know what is electric charge? I think everyone knows. Our atom can consist three types of charges. Clear? One is electron, another one is proton, and the neutron. So what is electron? Electron is the smallest particle of an atom and the lightest particle. It will reside at the outermost orbits, from where it gains energy and move from the orbit. It is the lightest one. And the other two is proton and neutron. So proton and neutrons consist of mass of any atom. So they both can carry the mass of an atom, and electron will not participate in the mass of an atom. So it is the lightest one. In electric field or in physics, we more concentrate on these particles, electrons. What are electrons? Because you know the definition of electric current, the rate of flow of electric charge, that charge is electron. इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ना कि प्रोटॉन से. ठीक है, तो यही फ्लो होगा बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट. ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ सी व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज intrinsic property of particles provides electric force between objects, and this is the scalar one. SI unit is coulomb. Clear? This is the intrinsic property. So एक इलेक्ट्रिक चार्ज किसी की भी आंतरिक प्रॉपर्टी होती है किसी पार्टिकल या बॉडी की, जो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करती है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. ठीक है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच का जाहिर सी बात है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो वो रिपेल ही करेगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो वो अट्रैक्ट करेगा. क्लियर? नाउ सी दिस. What is this basic properties? Basic properties of electric charge: additive. What it is? Additive. Additive nature आपने mathematics में सुना होगा. What is additive? Additive nature का मतलब होता है जोड़ने वाले. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी होती है all the charges can combine to form a bigger charge. So Q1 plus Q2 plus Q3 and much more. So this is the additive property. जोड़ के ही बनते. Speed has no effect. Speed has no effect on the charge of a body. चार्ज अगर -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम है, तो स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर. ना क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस इन एनी बॉडी और अ पार्टिकल. So it will always represented with the Q is equal to plus minus NE, where E stands for -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, where N are the numbers. मतलब हम बोल सकते हैं quantization can be represented by the integral multiple of charges on any body. ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको. Now see the conservation of charges. What are conservation of charges? Total charge of an isolated system remains constant. कोई भी चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कैसा होता है? हमेशा फिक्स, कांस्टेंट. कब
कभी भी चार्ज आधा टुकड़े में या पार्ट्स में या फ्रैक्शंस में कभी भी शिफ्ट नहीं होता। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, नंबर्स से होता है, इसलिए अपन इस n को बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल ओके, नंबर्स का मल्टीपल होगा, होल नंबर्स को डायरेक्ट, या तो 0 होगा या 1-2 शिफ्ट होंगे, ऐसा शिफ्ट होता है। अभी मैंने पेन टैब नया लिया है तो बहुत तेजी से इसका कर्सर काम करता है, मेरी हैबिट नहीं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पढ़ाते टाइम। चलिए, next is the quantization. This is the important from the point of board examination of class 12. Usually a question came either on MCQ और एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है। तो quantization of charge क्या होता है? Total charge Q present on a body is an integral multiple of a basic quantum of charge, that is E, which is on an electron. मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब पहले भी आपको बताया, दैट इज नथिंग, इट इज अ क्वांटिटी। क्या है ये? क्वांटिटी। ठीक है, कितनी क्वांटिटी पर चार्ज किसी बॉडी पर अवेलेबल है हमारे पास, ये क्वांटिटी कहलाती है। तो क्वांटिटी कैसी होती है? कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होती, इट इज ऑलवेज मल्टीप्लाई विद द मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर, मतलब कंप्लीट नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज Q कितना होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम चार्ज, मतलब E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट इट इज दिस वन। कितने प्रकार से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बॉडी से? तो कितने मेथड्स होते हैं बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन, एक होता है फ्रिक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे अपन ने प्लग लगाया और करंट हमारे तार से बह के आ गई है हमारे पास, तो क्या कहला जाएगा? कंडक्शन। मतलब शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू मेकिंग एंड कांटेक्ट, थ्रू मेकिंग कांटेक्ट विथ अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट बनाकर ही चार्ज शिफ्ट होगा। क्लियर है? उसके बाद इंडक्शन पे आ जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा गैस की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, तो गैस की शॉर्टेज के कारण आजकल लोग सबसे ज्यादा इंडक्शन चूल्हा यूज कर रहे हैं। तो इंडक्शन चूल्हा बेसिकली है क्या? इंडक्शन चूल्हे में कॉइल होती है और उसके स्पेशली यूटेंसिल्स आते हैं तो उसी पर वो हीट ट्रांसफर करेगी। अगर आप अपना हाथ भी रख देंगे तो वो गर्म नहीं होता। तो बेसिकली इंडक्शन क्या होगा? Shifting of charges from one body to another by just placing it near to another charged body। मतलब एक अनचार्ज्ड बॉडी और एक चार्ज्ड बॉडी, मतलब नीचे इंडक्शन की कॉइल है और ऊपर एक यूटेंसिल है जो ठंडा है नॉर्मल टेम्परेचर पर, उसको हमने जैसे उसके ऊपर रखा तो जस्ट प्लेस्ड नियर टू द चार्ज्ड बॉडी, चार्ज बॉडी के पास रखोगे अपने आप चार्जेस उसके दूसरे वाले सरफेस पे इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज इंड्यूस्ड विदाउट मेकिंग कांटेक्ट। चार्ज का शिफ्ट करना है जस्ट बाजू में रखकर, जैसे कोई आग जलती है और हम बाजू में खड़े हो जाए तो हमें हीट लगने लगता है रेडिएशंस के थ्रू, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। बिना कोई कांटेक्ट बनाए चार्जेस का शिफ्ट होना। नाउ नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसे अब आप ठंड में अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो गर्म हो जाते हैं हमारे। तो friction is somewhat like this. Shifting will takes place by just rubbing one body over other, and such process is called frictional electricity। जैसे आपने देखा होगा आजकल आ रहा है कि लोग उंगलियों से ना गैस बर्नर पे आग लगा लेते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि ऊपर से प्लास्टिक चेयर पे बैठा के ऊपर से शॉल लगाते हैं, जिससे क्या होता है उसके ऊपर स्टैटिक चार्जेस बन जाते हैं। बचपन में आपने खेला भी होगा कि एक स्केल लेकर ऐसे सर पे फेरते थे और पेपर पीसेस के ऊपर रखते थे तो वो चार्ज होकर चिपक जाता था। तो ये क्या है? फ्रिक्शन से है। दीज आर दी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सो हाउ मेनी मेथड्स बाय व्हिच वी कैन ट्रांसफर अ चार्ज? 3 मेथड्स, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। तो वो मैं छोटे छोटे से वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो अब ये नेक्स्ट सीरीज आती जाएगी जिसमें आप लोग भी लंबे लंबे लेक्चर्स में बोर ना हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? चार्जेस क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी पार्टिकल की,
जो इलेक्ट्रिक फोर्स बनाती है और उसका नेचर भी बताती है कि वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एडिटिव पढ़ी, फिर हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन पढ़ा कि क्वांटिटीज पर होते हैं, फिर ये पढ़ा कि चार्जेस कभी भी स्पीड से इफेक्ट नहीं होते, फिर क्वांटाइजेशन पढ़ा कि कोई भी चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज के ई के। फिर अपन ने पढ़ा कि कितने मेथड्स होते हैं शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस के, तो क्या क्या होते हैं, कंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है। कंडक्शन में अपन क्या करते हैं, बाय मेकिंग अ कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज चार्ज कैन बी शिफ्ट। इंडक्शन पे one body is uncharged, another one is charged, we can not make in contact but just placed near to it, so charge will induce on the uncharged body. What about friction? Friction just a rubbing of one surface to the another, so some charge will get shifted due to rubbing process. Clear? Now thank you so much. Wait for the next one, next video. Till then, bye bye, take care.